Hello students, I am Sushant Sharma, lecturer in Mechanical Engineering in Mirchand Polytechnic College. First of all, I welcome all of you mechanical students, and I am going to teach you Applied Mechanics, your new subject that is in third semester. So first of all, I will tell you about the Mission Fateh of Punjab government. With this message, we have to defeat coronavirus and save Punjab. So, we should not violate the norms of our Punjab government and follow all norms, including wearing masks, maintaining social distancing, and wash our hands with sanitizer. So, we together all have to defeat coronavirus. Now, moving to our subject, that is applied mechanics. First of all, I will introduce what we will study in this chapter. First introduction, that is concept of engineering mechanics, definition, static dynamics, application of engineering mechanics in practical field, definition of applied mechanics, definition, basic quantities and derived quantities of basic units and derived units, concept of rigid bodies, scalar and vector quantities, different system of units, and density, force for these for units. Okay, and conversion of these units. So, first of all, mechanics. What is mechanics? The branch of science which deals with the forces and their effects on the bodies on which they act is called mechanics. It studies the behavior of bodies, forces acting on bodies, and the effect of forces acting upon the bodies. Means कि ब्रांच ऑफ द साइंस डील्स विद द फोर्सेस. फोर्सेस मीन्स कि कोई भी उस पर प्रेशर पड़ रहा है, कोई फोर्स लग रही है. मीन्स ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी है पर रेस्ट में है, नॉट इन मोशन. तो रेस्ट के कारण भी उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं टेबल के ऊपर, दैट इज नेग्लिजिबल, वी ऑल नो. बट वी हैव टू कंसिडर इफ वी कंसिडर दैट फोर्सेस, द मैकेनिक्स इज इन्वॉल्व. ओके. And now, engineering mechanics is the application of mechanics to solve problems involving common engineering elements. Okay. Now, engineering mechanics means is the application of mechanics. Mechanics की वो application है to solve engineering elements की problem. Means अगर मान लो एक ब्रिज बनना है, तो ब्रिज का जो लोड है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे एलिमेंट्स पे. दिस इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ताकि जो है ब्रिज टूट ना जाए. ओके. नेक्स्ट, अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद द लॉज ऑफ मैकेनिक्स एज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. फिर वो जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी कारण कोई कार बना रहे हैं नहीं, उसके जो सोल्यूशन में वो मैकेनिक्स जो है अप्लाई कहाँ पे हो रही है. मतलब मैकेनिक्स मीन्स क्या है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स. वो जो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट्स हैं वो कहाँ पे अप्लाई होंगे, है ना. अप्लाई कहाँ पे किए जाएंगे जिसके कारण हम सॉल्यूशन कर सकें इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का, कि फोर्स हमें किसी जगह पर ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करना है. दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स. सो नेक्स्ट, दिस इज मैकेनिक्स की एग्जांपल एक लेते हुए, मैकेनिज्म क्या है कि एक साइकिल मूव कर रहा है. मैकेनिज्म में क्या है कि जो फ्रंट हम पावर दे रहे हैं फुट से फ्रंट में, तो ड्राइव हम पीछे ले रहे हैं, दैट इज मैकेनिक्स. बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं. ठीक है, स्प्रॉकेट्स लगी हैं, तो वो चेन ड्राइव से हम जब मूव कर रहे हैं तो ये मैकेनिक्स इन्वॉल्व है इसमें. ठीक है, तो सॉल्व द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. ओके. नेक्स्ट, branch of applied mechanics. So branch of applied mechanics deal with the broadly two branches, statics and dynamics. Statics means in rest, dynamics mean in motion. So statics, the branch of applied mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies which are at rest. Means जो जैसे हमने एग्जांपल ली, the book is lying on the table. तो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है बट इट इज इन रेस्ट, नॉट इन मोशन. ओके. सो जो रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक्स बोलेंगे. उसकी जो स्टडीज़
करेंगे उसका फोर्सेस को एंड देयर इफेक्ट्स, वो रेस्ट में करेंगे तो स्टैटिक्स. एंड डायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स while acting upon bodies which are in motion is called dynamics. ओके, अब जो मोशन में है, नाउ काइनेटिक्स, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स में द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स है दोनों मोशन की ही, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स भी, पर एक में हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं एंड द रिलेशनशिप को, और दूसरे में नहीं करते. काइनेटिक्स में क्या है, द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेज कॉजिंग मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक्स. ओके, मतलब जो रिलेशनशिप को डील करता है उसके मोशन ऑफ बॉडीज और फोर्सेज कॉजिंग मोशन, कि कौन सी फोर्स उस मोशन को लाने में आई है. और नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज, मतलब इसमें हम फोर्सेस कंसिडर नहीं करते, विच कॉज मोशन, जिसने उसको मोशन में लाया है, इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं. ये दोनों डायनेमिक्स के ही पार्ट्स हैं. स्टैटिक का एक ही पार्ट है कि वो बॉडी इज इन रेस्ट. नाउ क्वांटिटीज, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज एक्चुअली, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज मीन्स, क्वांटिटी मीन्स माप, तोल, जिसको हम तोल सकते हैं क्वांटिटी को, विच कैन बी मेजर्ड. हाँ, it may be in length, time, mass, kilogram. So the mutually independent quantities are called fundamental or basic quantities. Mutually independent means the mass is measured in kilogram. Okay, so जो kilogram है, these are 7 basic or fundamental units actually: mass, length, time, electric current, absolute temperature, amount of substance and luminous intensity. So mass जो है is always measured in kilogram. Okay, so applied mechanics में हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. लेंथ कैन इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, mm में मेजर भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक यूनिट्स है मीटर में मेजर करना है. टाइम आर में भी ले सकते हैं, बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक यूनिट एम्पियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का केल्विन. ओके, these are the basic units, means which cannot be changed. Okay, now I will tell you about what is derived units, the quantities which can be expressed in terms of fundamental or basic quantities are called derived quantities. Means velocity, velocity is displacement upon time, displacement can also be written in length upon time. Linear momentum, so linear momentum is mass into velocity. So one more example I will tell you now for clearing the difference between basic quantity or derived quantity. Okay, for example, force, here I write force. Force, the units of force are Newton. Okay, units of force is Newton, or Newton is equal to, force is equal to, what is force equal to, you all know, we already teach in physics, mass into acceleration. Okay, the units for mass is kilogram, that is basic units. Okay, and for acceleration is meter per second square. So these are the basic units, kilogram, meter and second. These are the basic units, and Newton is the derived units which can be derived from basic units like kilogram, meter and second square. Okay, I hope now you all clear. So next is I have already told that there are 7 basic units. Okay, now what is the difference between rigid body and flexible body, or what is rigid body? The rigid body may be defined as a body which does not changes in shape and size under the effect of forces acting on it. Okay, means जैसे we can have example like वुडन में क्या है कि वुड में क्या है कि अगर हम वुड पे जोर लगाते हैं तो वो
क्या है कि अपनी शेप एंड साइज़ चेंज नहीं करता। अगर हम मैनुअली जोर लगाएं शेप एंड साइज़ उसका चेंज नहीं होगा, बट क्या है कि सम डिफॉर्मेशन उसमें होती है। सो इनफैक्ट इट ऑलवेज सेज दैट नो बॉडी इज़ परफेक्टली रिजिड, कोई परफेक्टली रिजिड नहीं है। एवरी बॉडी व्हेन एक्टिंग अपॉन एक्सटर्नल फोर्सेज विल अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ओके, मतलब आइडियल सिचुएशन कहीं पे नहीं है। आइडियल सिचुएशन मीन्स कि अगर हम कहें ये परफेक्टली रिजिड है, वो नहीं। परफेक्टली रिजिड कोई भी नहीं है। रिजिड है मीन्स सॉलिड है, अगर हम उसको फोर्स लगाने से वो मूव नहीं करती, अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं करती। दूसरी साइड फ्लेक्सिबल बॉडी कौन सी है, विच चेंजेस इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ डिफॉर्मिंग और एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है प्लास्टिक का, उस पर जोर लगाते हैं तो वो मूव कर जाता है, अपनी शेप एंड साइज चेंज कर जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, मतलब मीन्स दे आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो स्केलर क्वांटिटीज जैसे मास, लेंथ, डेंसिटी, वर्क। मास क्या है, किलोग्राम। लेंथ क्या है, मीटर, जैसे अपना mm। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, so vector quantities have both magnitude as well as direction. Example, velocity, acceleration, movement, impulse or force. Okay, so now come to system of units. There are four basically system of units. CGS system means in this system the units of length, mass and time means कि सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में सिर्फ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि उसके यूनिट्स किस में लेने हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की कि फोर्स के यूनिट न्यूटन लेना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ओके, अगर हम न्यूटन को एक्सप्लेन करें आगे तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। सो इसी तरह जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक हम कहते हैं CGS यूनिट। CGS में मतलब जो लेंथ की यूनिट है वो सेंटीमीटर में लेंगे, C मतलब सेंटीमीटर, और मास के यूनिट हैं किलोग्राम को छोड़ के ग्राम में लेंगे। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S मतलब सेकंड, और टाइम के यूनिट हम सेकंड में लेंगे ना कि R में लेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू FPS सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फुट, मतलब यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फुट, कि हम फीट्स में मापेंगे कि कितने फीट है, कितने फुट का है ये। और जो मास का यूनिट है वो पाउंड में लेंगे, नॉट इन किलोग्राम। एंड जो सेकंड टाइम का यूनिट है वो नॉट इन आवर एंड सेकंड में लेंगे। MKS में ऐसे ही मास, लेंथ, मास और टाइम के यूनिट है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ओके, MKS का मीनिंग ही मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सो SI सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। दिस इज SI सिस्टम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मतलब जो MKS सिस्टम है वो SI सिस्टम ही है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the different conversion of the force, work, pressure, density, derived unit conversion. Okay, thank you all.